Good morning. Good morning. Good morning. 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 Good morning. Good Good morning, everyone. morning. Morning. Good morning, Good Aman bhai. Good morning. morning. Good morning. Morning. Good 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 morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wow. Thank you. And again, good morning and welcome. So it's sharp 7. मैं आज के जो लीडर है उनको बुलाना चाहूंगा. उनके पहले मैं आपको परिचय देना चाहूंगा उनका. वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है. तो पढ़ाना उनका पैशन है. वो हर बार जहां मौका मिले वहां पढ़ाते रहते हैं. वहां पे तो पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, हमारे असिस्टिंग करते हैं, तो वहां पे लोगों के साथ जुड़ते हैं. उनके साथ साथ बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे. बहुत सारे लोग हैं जो रोड पे वो रहते हैं, उनका घर भी नहीं है, तो उसको एजुकेशन कहाँ से मिलेगी. तो वो उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. आप फोटो देख सकते हैं. और उतना ही नहीं, वहां पे वो नहीं रुकते हैं. वो ये बच्चों को लेके हॉस्टल में भेजते हैं ताकि उनको अच्छा एजुकेशन मिले. तो कौन हो सकता है, कोई गेस करेगा? असिस्टिंग मेंबर को रिक्वेस्ट है गेस नहीं करना है. किसका नाम आता है थोड़ा मेरे को वो भी देखना है. प्लीज राइट ऑन चैट. आप लोग चैट में लिख सकते हैं. किसी की फोटो दिख तो नहीं रही है? नहीं, नहीं दिख रही है. ओके. अरे गेस करने में तो किसी का नाम भी ले सकते हैं. उसमें इतना क्यों रुके हुए हम? ओके. यशु भाई वो जानते होंगे. तो जी हाँ, इसमें उनकी फोटो है और उनका नाम है मिस्टर सतीश दामेलिया. तो आज मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा. सही में सतीश सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. आपको सैल्यूट है. तो मेरा रिक्वेस्ट है हम सब तालियों के साथ उनका वेलकम करें. वेलकम सतीश सर. Welcome. Welcome, Sativa. The great work, sir. Welcome, Satish sir. Welcome, sir. Okay, yes Satish, welcome and over to you. Thank you. Wow, thank you, Ajay sir, for my introduction. And am I audible? Yes, yes. Yes, Satish. Satish, you have maybe network issue. One minute, what happened? Yes, मेरी आवाज आ रही है जिग्नेश? I am audible? Yes, yes, you are. Okay. So maybe Satish have network issue. No problem. We move here. वो जब तक नहीं आते तब तक हम आगे बढ़ते हैं. Satish, when you come, please raise your hand. Naresh, please check it. Satish, when come, please inform me. Okay. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. ये कुछ हमारे ग्राउंड रूल्स है जो हमें ऑलवेज फॉलो करने हैं. और ये हमारा इंटेंशन है टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल टीचिंग हिम हर इंग्लिश. आगे बढ़ते हैं. व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप सबको पता है हमें Hello. इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए. या सतीश, नाउ ऑडिबल. Okay. गो अहेड. सतीश. Yes. Just 1 minute. Okay. I'm not Okay. able to move my PPT.
No problem. I will move if you have network issue. No, sir. No, it's fully. Okay, so Just one 1 minute. minute. I give to you remote rights, so you move it. Yes. Yes, yes. 1 minute. Now I check remote control. Which ID, Satish? Just second. EC Satish or Satish Damelia? Satish Tamilia. Okay, go ahead. Now you change it. Please check Okay. it. Yeah. Yes. Okay. I'm really sorry for the interruption, and I warm welcome all of you in this energetic morning. And thank you very much, Ajay sir, for my introduction. Okay. So this is a welcome note. You should follow all these rules and regulations to get optimum value from this club or from this class. So you know very well about all these rules. So I'm not going to repeat all these rules right now. Our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention, and to fulfill that intention, you should clear about your intention too. That why do you want to learn English? And I hope you all have completed your homework. So today's topic is past continuous tense. हमने इसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. सो थोड़ा उसके बारे में हम देखेंगे पहले, और उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं. तो हु विल एक्सप्लेन मी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? प्लीज रेज योर हैंड. Please raise your hand. Yes. Please explain present continuous tense. Am I audible? Yes, Satish, but we mute, then somebody speak. Okay, so now Silpa Virani. Yes. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. जो एक्शन अभी चालू हो रही है, मीन्स एग्जांपल दू तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, सो दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Okay. And what is your future continuous tense? हेलो, Future continuous tense के बारे में बताइए. हाँ प्रेजेंट की तो बात की मैंने. ओके, प्रेजेंट हो गया ना. अभी ये दूसरा टेंस हमने कल पढ़ा था. ओके, फ्यूचर फ्यूचर. कंटिन्यूस. यस. ओके 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 ओके. हाँ, जो एक्शन फ्यूचर में हो रही है, हो रही होगी, ऐसा बताने Yes. के लिए कंटिन्यूअस टेंस होगा. ओके, वेरी गुड. सो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू है प्रेजेंट में. कोई भी एक्शन या इवेंट जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. और कोई एक्शन या इवेंट भविष्य में या फ्यूचर में कंटिन्यू होगी वो दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा कि कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट पास्ट में कंटिन्यू थी, चालू थी, वो दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. तो ये बेसिक डिफरेंस सिर्फ टाइम का है. बाकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन वो सेम ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. तो यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम ओके. तो सभी कंटिन्यूस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं. दो नेम है. Ajay sir, I think this PPT is changed. Okay. So can you share your PPT? Yes, I already shared my PPT, but I don't know. 1 minute.
I stopped my PPT. Now you share your PPT Okay. again. चलो जल्दी कर. Shilpa, please be on mute. Yes, now it's okay. ओके सो अभी टेंस के बारे में आगे हम थोड़ा देखेंगे, उससे पहले हम उसकी सेंटेंस पैटर्न को देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम एम इज आर का यूज करते थे एज ए हेल्पिंग वर्ब, जो टू बी का प्रेजेंट फॉर्म था, और यहाँ पे हम उसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो जो है वॉज वर्ब प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म। फिर है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें सब्जेक्ट आता है पहले, फिर प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म। और नेक्स्ट इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर प्लस वर्ब का एनजी वाला फॉर्म। तो ये बेसिक जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जैसा ही सेंटेंस फॉर्मेशन है। वहां पे हम एम इज आर का यूज करते थे और यहाँ पे हम वॉज और वर्ब का यूज करेंगे। ओके अभी वॉज और वर्ड का प्रयोग, तो वॉज किसके साथ आएगा, तो वॉज का प्रयोग आई ही सी और सिंगुलर नाउन के साथ ए आएगा। फिर वर्ड का प्रयोग वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ है आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि वॉज आई ही सी और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, फिर वर्ड जो है वी यू दे और प्लूरल के साथ आएगा। तो ये हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, सेंटेंस पैटर्न कैसा है। अभी हम उसको मीनिंग समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मीनिंग एक्चुअली हम कब उसको यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं तो बोलने में हम कब इसको यूज करते हैं। तो पहले देखें कि पहले हमको हिंदी में समझेंगे। सो आई नीड 2 or 3 participate to communicate with me for this. So please raise your hand if you are ready to communicate with me in Hindi. I will ask you some question and you have to give that answer. Yes, Vaishali Patel. Yes, Vaishali. Hello. Vaishali Patel, are you there? Maybe she has network issues. This. Okay. Please unmute any one other participant. Yes, Shilpa. Yes, sir. Yes. तो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सिर्फ इसको हिंदी में आंसर देना है। अभी क्या कर रही हूँ सर? यस, आप क्वेश्चन देखिए, आप क्या कर रहे हो। यस यस यस, मैं मेरी डॉटर को रेडी कर रही हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हो। अभी मैं उसको चाय दूध बना रही हूँ, उसके लिए चाय दूध बना रही हूँ। ओके मतलब क्या आपका जो आंसर है वो चेंज हुआ कि वही रहा आंसर। पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, और बाद में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो इस दोनों में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है कि सेम ही है। अभी का डिफरेंस लग रहा है कि अभी हाल में क्या कर रही हूँ। ओके ठीक है। और वो देखिए मैं यस फर्स्ट वन है उसमें ऐसा बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जनरल बात कर रहे हैं कि अभी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके ग्रेट ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ। तो हिंदी का जो सेंटेंस पहला है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो अभी की ही बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट की ही बात करता है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी मैं अगर लगाता हूँ या नहीं लगाता हूँ तो उसका कुछ
वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे थे, इसका आंसर दीजिए। यस, मैं मेरी बेटी के लिए नाश्ता कर रही थी। कर रहे थे, ओके। तो Yes. मैंने आपको यहाँ पे ऐसा पूछा कि आप कब क्या कर रहे थे, मैंने सिर्फ आपको इतना ही पूछा कि आप क्या कर रहे थे। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होता ना। देखिए, Yes. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या कर रहे थे, आपको मुझे पूछना चाहिए कि मैं कब कब की बात कर रहे हो आप, अभी की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो, परसों की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं स्पेसिफिक कि आप कल क्या कर रहे थे, राइट, तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया है, ठीक है। और एक Yes. क्वेश्चन में आपको, चलो इसका आंसर दीजिए, आप कल सुबह 10 बजे क्या कर रहे थे। कोई भी आप आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि जो भी है वो। कल सुबह 10 बजे मैं बाहर गई थी मार्केट। ओके ओके, आप मार्केट में सब्जी खरीद रहे थे, आई थिंक, राइट। यस यस। आप कल सुबह 10 बजे मार्केट में सब्जी परचेज कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वहाँ पे ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमने यहाँ पे कल ऐड किया है और सुबह 10 बजे ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने रेफरेंस दिया है। अगर जब भी आप हिंदी में भी बात करोगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आप हिंदी में कभी बोलते हो तो आपको कुछ रेफरेंस दे के बोलना पड़ता है, राइट। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी लगाऊं। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, तो वो अभी की बात होगी। फिर मैं आपको बोलूँ व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो भी अभी की बात होगी, राइट। तो ये यहाँ पे रेफरेंस देना जरूरी नहीं है, जबकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आप कब की बात कर रहे हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, तब आप क्या कर रहे थे, राइट। तो आपका आंसर हो सकता है कि तब मैं खाना खा रहा था या मैं टीवी देख रहा था। तो ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, लेकिन वो कब का है? जब अर्थक्वेक आया था तब। तो जो अर्थक्वेक आया था वो मैंने एक रेफरेंस लिया है, वो घटना जो घटी थी उसका मैंने रेफरेंस लिया है, और उसके साथ मैंने ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब मैंने आप कॉल किया तब आप क्या कर रहे थे। हो सकता है कि आपने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया हो और वो आपको बाद में बोले कि जब मैंने आपको कॉल किया था तब आप क्या कर रहे थे, राइट। तो आपका आंसर हो सकता है कि मैं टीवी देख रहा था या मैं खाना खा रहा था। तो तभी आप एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आप बोल सकोगे। अदरवाइज आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे ना। अगर पर्टिकुलर आपको पूछा ही नहीं है पास्ट के बारे में, तो आप सिंपल पास्ट का यूज करके सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन उस स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू थी, उसके दौरान एक कुछ घटना घटी है, तभी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कल और सुबह 10 बजे और जब मैंने आपको कॉल किया, ये सब रेफरेंस है। यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है। देखिए पहला सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस ये था कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं था, नो रेफरेंस। आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं था कि आप कब की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उसमें ऐड किया कल क्या कर रहे थे, तो थोड़ा स्पेसिफिक हुआ है आंसर, ठीक है। फिर सुबह 10 बजे की बात हुई तो और स्पेसिफिक आंसर मुझे मिला। फिर मैंने घटना जो पास्ट में कोई थी उसका रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे ए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। तो इसको ए पूरा जो है हमने हिंदी में समझा है, इसको हम अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज अनम्यूट एनी वन अदर पार्टिसिपेट। ओके, यस श्रुति सांगाणी। જલ્દી Yes. ચાલશે મોડું થશે. ચા દૂધ પી જા પાછા થોડુંક જ પાણી પી બસ. हेलो, श्रुति, ओके, Hello. यस रसिक।
Rasik Narola. Yes. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. ओके रसिक भाई, प्रेजेंट Yes. कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है आई एम प्लेइंग, तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैं खेल रहा हूँ। ओके, आई एम प्लेइंग नाउ, अभी इसका मीनिंग क्या होता है? मैं अभी खेल रहा हूँ। तो देखिए दोनों में हम अगर नाउ का यूज करेंगे या नहीं करेंगे तो इसका कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमें मालूम पड़ता नहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई एम प्लेइंग जो है वो इटसेल्फ हमने एम प्लस आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो घटना है वो अभी हो रही है, इसी वक्त हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सेम आएगा कि आई वाज प्लेइंग, राइट, तो इसका खेल मीनिंग रहा था। मैं खेल रहा था, लेकिन कब खेल रहे थे आप? ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मीनिंग आधार लगेगा ना कि मैं खेल रहा था, लेकिन कब खेल रहा था, तो यहाँ पे आपको Yes. रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल के आई वाज प्लेइंग ऑल डे यस्टरडे, मैं कल पूरा दिन खेल रहा था, राइट। या फिर और एक Right. एग्जांपल दे सकते हैं कि आई वाज प्लेइंग एट 10 AM यस्टरडे, कल सुबह 10 बजे मैं खेल रहा था। या फिर आई वाज प्लेइंग व्हेन यू केम टू माय होम, जब तुम मेरे घर आए तब मैं खेल रहा था। तो जो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया था, वो मीनिंग ग्रामेटिकली ओके था, लेकिन मीनिंग वाइज हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कब की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो 3 सेंटेंस हमने लास्ट में जो बनाए उसमें हमें एक रेफरेंस दिया है हर जगह पे। देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस है कि 10 AM यस्टरडे, और एक घटना का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो ये सभी का एक ही मीनिंग होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये दोनों में आपको टाइम का या कुछ भी ऐसी घटना का रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए वो लोग अभी अपना हैंड रेस कीजिए। प्लीज हैंड रेस इफ यू not understand anything from this. Nobody raised hand, Satish. Okay, so we go ahead. Okay, तो अभी हमने जो रेफरेंस पॉइंट की बात की है वो सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वन बाय वन, तभी आपका और भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप लेडी देख रहे हो कि लेडी सुबह 8 बजे से पहले से काम कर रही है और शाम को 4 बजे के बाद भी वो कंटिन्यू अपने ऑफिस में काम कर रही है। तो अभी वो बोलेगी कि शी वाज वर्किंग होल डे यस्टरडे, वो कल पूरा दिन काम कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो वाज वर्किंग जो है वो यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन, और ये जो है हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट जिसकी हमने बात की थी। फिर सेकंड दूसरा सेंटेंस देखिए, यस्टरडे धारा वाज स्टडीइंग ऑल डे, मतलब कि कल धारा पूरा दिन पढ़ाई कर रही थी, राइट। तो ये यहाँ पे भी वॉइस प्लस स्टडीइंग, मतलब कि ये जो हमने किया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन है और ये हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी ऐसा कोई सेंटेंस कौन बनाएगा? प्लीज मेक वन सेंटेंस फ्रॉम दिस। यस शिल्पा। Yes, sir. सेंटेंस बनाए, जैसे कि यहाँ पे I was playing chess with my daughter yesterday. वाओ। तो आप कल आपका इसका हिंदी भी बनाए साथ में। हेलो, हाँ सर, इसका हिंदी भी बनाए। हिंदी में क्या मीनिंग होता है? मैं कल मेरी बेटी के साथ चेस खेल रही थी। ओके, तो खेल रही थी मतलब कि हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और अपने रेफरेंस भी दिया कि यस्टरडे कल की बात हुई। वेरी गुड। ओके, कोई एक और एग्जांपल? यस रजनीकांत। Yes, sir. Thank you. Birds were fly
flying in the sky, then rain come. Birds were flying in the sky, then rain come. ओके, इसका हिंदी में क्या आप बताना चाहते हो? પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા હતા, ત્યાર પછી વરસાદ આવ્યો. ત્યાર પછી વરસાદ આવ્યો. ओके, तो इसका जो है ना सेंटेंस रजनीकांत आप याद रखेगा, आगे आएगा तो उसमें हम उसको दो एक्शन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपने जो बनाया उस तरह से नहीं बनता है, लेकिन आप माइंड में रखेगा, जब आगे आगे टॉपिक आएगा तब इसको फिर से बनाएंगे. ठीक है, ओके ओके. सेकंड टॉपिक है स्पेसिफिक टाइम. तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, 4 बजे से पहले से बारिश हो रही थी और 6 बजे के बाद भी बारिश कंटिन्यू हो रही है, ठीक है? और इसमें आपको कोई ये जो बारिश की जो एक्शन है वो होने की वो कंटिन्यू है, और इसमें आपको कोई स्पेसिफिक बोलता है 5 बजे कि 5 बजे क्या हो रहा था, तो आप इसको बोल सकते हो कि एट 5 PM yesterday it was raining, राइट? अगर सिर्फ आप इट वाज रेनिंग बोलेंगे तो मीनिंग वाइज अधूरा है. यहाँ पे आपको ये साथ में जो रेफरेंस है वो देना पड़ता है. एट 5 PM yesterday, 5 PM 5 बजे, तो 5 बजे वो बारिश रुक नहीं गई थी, वो कंटिन्यू थी, और उसके बाद भी वो रुक नहीं गई थी, उसके बाद भी कंटिन्यू थी. लेकिन 5 बजे आप उसको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस बोल सकते हो. दूसरा सेंटेंस है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको कॉल करता है रात को 11 बजे और आप उसको नहीं उठाते हो, कॉल को रिसीव नहीं करते हो, तो फिर आपको बोलेगा कि आपने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया 11 बजे, तो आप बोलोगे कि एट 11 PM एट स्पेसिफिक टाइम आई वाज स्लीपिंग, मतलब कि 11 बजे मैं सो रहा था, 11 बजे से पहले मैं सो गया था. इन बिटवीन जब आपका भी कॉल आया 11 बजे, तो मेरी जो सोने की एक्शन थी वो कंटिन्यू थी, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे आई वाज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने यहाँ यूज किया है. ओके, नेक्स्ट जो है हमारी जो घटना की हमने बात की थी कि कोई एक्शन या कोई पास्ट में कोई ऐसी इवेंट बनी है या घटना बनी है, उसको भी हम रेफरेंस लेके हम सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बना सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल कि जब तुमने मुझे कॉल किया था तब मैं खाना खा रहा था, राइट? तो यहाँ पे देखिए आपको दो एक्शन यहाँ पे नजर में आएगी, एक तो कॉल करने की और खाना खा रहा था. तो यहाँ पे रजनीकांत आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्शन जो है लॉन्ग एक्शन है और कौन सी एक्शन है वो शॉर्ट या स्मॉलर एक्शन है. जो खाना खाने की है वो लॉन्ग है और कॉल करने की वो शॉर्ट है. ओके, तो जो खाना खाने की जो एक्शन है वो कंटिन्यू थी, राइट? उसके दौरान कॉल आया, तो जो खाना खाने की जो एक्शन थी वो हमारी थी लॉन्ग एक्शन, जबकि स्मॉलर एक्शन कौन सी थी? तुमने मुझे कॉल किया. तो यहाँ पे दो एक्शन है, दोनों एक्शन के लिए हम दो डिफरेंट टेंस का यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग एक्शन जो है वो खाना खाने की है, मतलब कि वो कंटिन्यू है, तो उसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? और जो स्मॉलर एक्शन है, जो दूसरी एक्शन बनी है, उसमें आएगा सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, तो ये सेंटेंस को इस तरह से बनेगा कि आई वॉज हैविंग और ईटिंग दोनों बोल सकते हो कि आई वॉज हैविंग डिनर when you call me. so when का यहाँ पे हमने यूज किया है, और उसके बाद जो सेंटेंस है वो हमने सिंपल पास्ट का यूज किया है, क्योंकि कॉल करने की जो एक्शन है वो स्मॉलर एक्शन है और वो उस टाइम के लिए बनी थी, जबकि खाना खाने की जो एक्शन थी वो कंटिन्यू थी. इसलिए यहाँ पे हमने उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिया है, और जो कॉल करने की जो घटना है उसमें हमने सिंपल पास्ट से बनाया. तो ये इस तरह से होगा कि आई वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू कॉल मी. नेक्स्ट, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन जिम नॉक द डोर. तो यहाँ पे एक लेडी है, वो कंटिन्यूसली टीवी देख रही थी, और इन बिटवीन जो जिम है उसने डोर को नॉक किया. जो नॉक करने की जो एक्शन है वो शॉर्ट एक्शन है, स्मॉलर एक्शन है, जबकि टीवी देखने की एक्शन जो थी वो लॉन्ग एक्शन है. तो यहाँ पे हमने लॉन्ग एक्शन के लिए हमने यहाँ पे
पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है, जबकि जो शॉर्ट एक्शन है उसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। सो आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन जिम नॉक द डोर। ओके, तो अभी ये जो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो हु विल एक्सप्लेन मी दिस सेंटेंस? प्लीज रेज योर हैंड। यस, तुषार। Jimmy was taking a bath यस, when the phone rang. ओके જ્યારે ફોનની રિંગ વાગી ત્યારે જીમી બાથમાં નાઈ રહ્યો હતો. ओके, तो यहाँ पे हमने આમાં શોર્ટ ક્રિયા છે રિંગ વાગવાની ओके અને લોંગ ક્રિયા છે બાથમાં નાવાની. ओके, तो नावानी जो एक्शन है वो कंटिन्यू होती पास्ट में, राइट? वो कंटिन्यू Yes. थी, इसलिए यहाँ पे हमने वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाया है। और जो फोन आने की जो घटना है वो कुछ समय के लिए थी, कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए थी, वो शॉर्ट एक्शन थी, तो यहाँ पे हमने उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। वेरी गुड। ओके ओके, एक कौन एक्सप्लेन करेगा अभी? प्लीज अनम्यूट एनी वन पार्टिसिपेट। प्रफुल पटेल। Sir, John's daughter was sleeping when he called her at 8 p.m. ओके, इसको सर एक्सप्लेन कीजिए आप। हाँ, इसमें सोने की जो क्रिया है वो कंटिन्यूस चल रही है और कॉल करने एट पर्टिकुलर टाइम पे कॉल किया गया है। जिससे Okay. सोने की घटना 7 to 9 p.m. तक चल रही है। एट Okay. पर्टिकुलर टाइम ऑफ लोकेशन मींस 8 बजे जब कॉल किया गया था तब भी वो सो ही रही थी। राइट, वेरी गुड सर। ओके, देखिए यहाँ पे जो स्लीपिंग की एक्शन जो कंटिन्यू थी, इन बिटवीन कॉल आया, राइट? तो वो शॉर्ट एक्शन हो गई, तो इसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया और बाकी के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। ओके, एक कौन एक्सप्लेन करेगा अभी? प्लीज रेज योर हैंड। Yes, Rajnikant. Yes, sir. I was giving a presentation when John came in. Okay. मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी Yeah. जॉन की एंट्री हुई, जॉन आया, यानी कि John मेरे आया। जो यस सर Yes. मेरे जो लॉन्ग है वो है मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था और शॉर्ट एक्शन है जो जॉन आने की। ओके, लॉन्ग एक्शन यानी कि वो एक्शन कंटिन्यू थी, राइट? यस, उसके दौरान जॉन की एंट्री हुई, तो जो कंटिन्यू एक्शन थी उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, पास्ट टेंस। यस सर। फिर सिंपल टेंस का यूज करेंगे सिंपल पास्ट का एंट्री के लिए। वेरी गुड, चलो। ओके, यस रसिक। ओके, प्लीज आप जो हैंड रेज है उसको प्लीज रहने दीजिए। यस, रसिक नारोला। It was watching TV when she called. टीवी जो देखने का मतलब वॉचिंग चालू था, मतलब वो लॉन्ग एक्शन है। ओके और उसके दौरान मतलब जो कॉल आया वो शॉर्ट एक्शन है। ओके, तो इसका मीनिंग बताइए सर, आप हिंदी में क्या होता है? आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था ओके तब उसका कॉल आया। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है दे वर हैविंग डिनर। तो इसके जैसे ही सेंटेंस है, मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दे वर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, राइट? सो वो लोग डिनर कर रहे थे जब हम वहाँ पहुंचे। और सेकंड है आई वाज कुकिंग व्हेन शी कॉल्ड, मैं खाना बना रहा था तब उसने मुझे बुलाया या उसका कॉल आया। तो यहाँ पे जो बुलाने की एक्शन है वो शॉर्ट एक्शन है और खाना बनाने की जो एक्शन है वो कंटिन्यू थी। तो यहाँ पे हमने ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज किया है। ओके, अभी हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हमारा जो ओके सेंटेंस है दियांश वाज क्राइंग लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट को दियांश रो रहा था, बीती रात को दियांश
रो रहा था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव कौन बनाएगा? प्लीज मेक इट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव. यस प्रफुल्ल पटेल. Diansh was not crying last night. Yes, Diansh was not crying last night. ये हेल्पिंग वर्ब जो उसके बाद यहाँ पे नॉट आएगा. ये सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो पैटर्न है वही है. वहां पे एम इज आर प्लस नॉट आता है, यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस नॉट. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस. अभी यहाँ पे लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि कोई भी जो क्वेश्चन वाला जो आता है सेंटेंस उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव. और उसके बाजू में लिखा डबल इंट्रोगेटिव. तो डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ही डिफरेंस है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका आप आंसर ये हाँ और ना में दे पाओगे, राइट. और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका आपको कुछ आंसर देना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा. अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो पहले देखे ये जो सेंटेंस है दियांश वाज क्राइंग लास्ट नाइट, इसका ही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे. तो इस तरह से कुछ होगा, वाज दियांश क्राइंग लास्ट नाइट, राइट. क्या दियांश कल रात रो रहा था? तो आपको हाँ या ना में आंसर देना है, इसमें आपको कुछ डिटेल्स देनी नहीं. तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट. जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लीज वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और अदर वर्ड. तो वाज दियांश क्राइंग लास्ट नाइट, क्या कल रात दियांश रो रहा था? तो आपको आंसर देना है यस और नो. लेकिन इसका अगर मैं डबल इंट्रोगेटिव बनाऊं, डबल इंट्रोगेटिव यानी कि यहाँ पे आपको इसमें से कुछ आगे लगाना पड़ता है. डब्ल्यूएच वर्ड, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफन, कोई भी अगर डब्ल्यूएच वाला आगे वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल कि व्हाई वाज दियांश क्राइंग लास्ट नाइट, तो एक तो ये इंट्रोगेटिव था, उसके आगे डब्ल्यूएच वाला भी आ गया, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव. तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा कि व्हाई वाज दियांश क्राइंग लास्ट नाइट, बीती रात को दियांश क्यों रो रहा था, है. तो इसमें आपको हाँ या ना में आंसर नहीं देना है, लेकिन उसका रीजन के साथ आपको आंसर देना. तो बेसिकली यही डिफरेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. अभी डबल इंट्रोगेटिव और एक हम बनाएंगे कि व्हाट वाज दियांश डूइंग लास्ट नाइट. तो लास्ट नाइट को दियांश मतलब बीती रात को दियांश क्या कर रहा था, यहाँ पे भी आपको आंसर देना पड़ेगा, डबल इंट्रोगेटिव है. थर्ड हमने बनाया कि हु वाज क्राइंग लास्ट नाइट. हु वाज क्राइंग मतलब हु की जगह पे हमने जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा. हु वाज क्राइंग लास्ट नाइट, बीती रात को कौन रो रहा था, राइट. तो ये हमारा जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ये यहाँ पे सेंटेंस हमने कंप्लीट किया. तो अभी तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो अपना हैंड रेज कीजिए. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. यस त्रिभुवन भाई. यस सर. जैसे लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन हमने पास्ट में समझी कि Yes, पास्ट yes. कंटिन्यूज और सिंपल पास्ट का यूज करना है. राइट. बिल्कुल ऐसा ही फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर में लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन हो तो कंटिन्यूस जो एक्शन है वो होगी लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन होगी वो सिंपल में हमें प्रेजेंट करनी है. यस, उसमें भी हमने सेंटेंस कल देखे थे, जो उसमें Okay. भी वेन के साथ हमने से कुछ सेंटेंस आप पीपीटी देख लेना बाद में. असाइनमेंट में एक सेंटेंस था उसमें डाउट था इसलिए सर. हाँ, वो जो एक्सीडेंट वाला था ना सेंटेंस. हाँ एक्सीडेंट वाला था, राइट. तो उसमें विल आएगा दूसरे सेंटेंस में. अभी उसमें देखिए वो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. वहां पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ आपको सिंपल, आई थिंक मुझे आई एम नॉट श्योर कि सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद. ओके सर. क्योंकि वो जो आपने होमवर्क की में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस था. इसमें आपको कोई डाउट है त्रिभुवन भाई? नो सर. ओके ओके. तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. जो फर्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा? अभी आज शाम जब वो मेरे घर पहुंचे तो मैं डिनर कर रहा था. Who will make this sentence? Please raise your hand.
यस अमरसी भाई। यस सर, आज शाम जब वह मेरे घर पहुंचे तो मैं डिनर कर रहा था। आई वॉज टेकिंग डिनर ओके when he came to my house. यस वेरी गुड। सो आज शाम का आपने क्या कुछ शेयर नहीं किया? पूरा Yes, पूरा sir. सेंटेंस पढ़िए, पूरा सेंटेंस। I was taking my dinner when he came to my house in the evening. ओके तो यहाँ पे देखिए डिनर करने की जो एक्शन है वो कंटिन्यू थी, राइट? और घर पहुंचने की जो एक्शन थी वो शॉर्ट एक्शन है। तो लॉन्ग एक्शन के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो शॉर्ट एक्शन उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस, और अदर वर्ड जो है दिस इवनिंग। ओके नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस बनाइए, कौन बनाएगा अभी? यस सतीश राणा। You were learning maths whole day. ओके लर्निंग का मीन्स क्या होता है? सीखना. ओके यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है पढ़ाई। Studying. You were studying maths whole day. फिर से बोलिए। You were studying maths whole day. ओके यू आर स्टडीइंग मैथ्स होल डे, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट यस आगे कौन बनेगा तीसरा सेंटेंस? यस श्रद्धा धमेलिया। I was watching cricket in TV when he called me. ओके तो यहाँ पे लॉन्ग एक्शन कौन सी है? लॉन्ग एक्शन टीवी में क्रिकेट देखना। ओके और इसके लिए आपने कौन सा टेंस यूज किया है यहाँ पे? इसके लिए was। टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है ना? हाँ। ओके और दूसरी एक्शन शॉर्ट एक्शन कौन सी है यहाँ पे? फोन किया उसने मुझे। हाँ तो उसके लिए कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल वेरी गुड, पास्ट। यस वेरी गुड। तो ये देखिए टीवी देखने की जो एक्शन है वो लॉन्गर एक्शन है, वो कंटिन्यू एक्शन थी, और जो कॉल करने की जो एक्शन थी वो शॉर्ट एक्शन थी। तो यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, और यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके ओके तो ये होमवर्क है, और अभी सर टाइम कितना है? 7:42। ओके सो दिस इज अवर होमवर्क। आपको ये जो होमवर्क है वो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। 5A2 से थैंक यू। देयर इज मेनी वे बट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई अप्रिशिएट इट, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक्स अ लॉट। तो ये पूरा आप याद रखेंगे। देयर इज 5A2 से थैंक यू। एंड व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक। आपको कुछ वैशाली फीडबैक हैव देना है। क्वेश्चन सतीश। यस 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 वैशाली। Am I audible now? Yes. Satish, there was some network issue, so I couldn't ask question. Actually, I wanted to ask about interrogative and double interrogative. What is the difference? Okay. Okay. Interrogative जो हमने आगे देखा था ना, ओके तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका हमने ये बनाया was Dian's crying last night, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन वाले हो गए उसमें हमें यस और नो में आंसर देना आता है। जबकि आप क्या दियांश कल रात रो रहा था कि आपने खाना खा लिया है, क्या आपने पढ़ाई कर ली है,
तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके साथ अगर आप कोई WH वाला क्वेश्चन ऐड करते हो, जैसे कि आगे यहाँ पे लिखे WH वाला वाई, तो आपको कुछ आंसर डिटेल में देना पड़ता है कि वाई वॉज दियांश क्राइंग लास्ट नाइट को दियांश क्यों रो रहा था, तो आपको उसको रीजन देना पड़ता है कि ये इस कारण से आपको रो रहा था। तो बेसिकली डिफरेंस तो यही है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, जबकि डबल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ तो होएगा लेकिन उसके आगे WH वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। Are you clear with this, Vaishali? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So are you clear or not right now? Yes, yes, yes. Okay. Okay. So किसी और को कोई क्वेश्चन है, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। If you have any question or any doubt regarding this topic, please raise your hand. Okay, आप कोई फीडबैक? Yes. Satish, can we launch the poll? या कोई फीडबैक देना चाहेगा आज का लेक्चर का, टुडेज क्लास का कोई फीडबैक? Okay, Ajay sir, you can launch the poll. No, yeah. Naresh, can you launch the poll, please? Satish, you have also show up in option in laptop. Launch poll. Can you launch? I will launch. Okay, okay. Have you seen? No, please click on launch. I have already clicked on launch and party start. Okay, one participant. Right, this one. Okay, after the polling, please share the result. Okay. Okay. There are 2 questions. सभी participant को बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ के उसको क्लिक चूज करना है सिर्फ बस। प्लीज फास्ट आप अपना इनपुट डालिए। अभी तक 24 पार्टिसिपेंट ने फीडबैक दे दिया है आउट ऑफ 69। After 20 seconds, please close it. Okay. Okay, Naresh. Okay. तो रिजल्ट दिख रहा है? Okay, close it. Yes, Satish, over to you. Yes. So yeah. Okay, I declare this class completed. Okay, so thank you all guys. Bye bye. Bye 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 bye. Goodbye. Guys, bye bye. Goodbye. Everybody have a nice day. Goodbye. 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 Can you close the meeting, please? Goodbye.